We are going to study about the properties of a rhombus. As we know that every rhombus is a parallelogram. सभी rhombus parallelogram होते हैं. इसका मतलब क्या है? rhombus जो है parallelogram के सभी properties को follow करता है. parallelogram में हमने जितने भी properties स्टडी किए हैं वो सभी यहाँ पर सही बैठते हैं. तो just we are going to look at the properties of a rhombus. You can find that both pair of opposite sides are equal. So we can see that opposite sides are equal. इन जनरल में हम लोग कह सकते हैं क्योंकि चारों साइड तो इक्वल है, तो जब चारों साइड इक्वल है दैट मीन्स अपोजिट साइड को तो हम इक्वल कहेंगे. Second, you can find that since it is a parallelogram, that means opposite angles are also equal. Angle A is equal to angle C and angle D is equal to angle B. Opposite angles are equal. Now the third property we are going to look about. Again you can say that when you look at the adjacent angles, then in the case of parallel lines the adjacent angles are supplementary. So each pair of adjacent angles are supplementary here. Angle A plus B is equal to 180, B plus C equal to 180, C plus D 180 and D plus A 180. That means adjacent angles are supplementary here. Next property, diagonals bisect each other at 90 degree. Diagonals एक दूसरे को 90 degree का एंगल बनाते हुए bisect करते हैं. When you draw the figure, then you can find. So in this figure you can find that both the diagonals bisect each other at 90 degree. Each other at 90 degree means cut each other at 90 degree means this angle is equal to 90 degree. Similarly, everywhere you can find that the angle 90 degree. That means cut each other at 90 degree को हम लोग बोलते हैं perpendicular. Means both diagonals are perpendicular to each other. इस लाइन को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री मीन्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर. इसी को अगर हम दूसरी भाषा में लिखना चाहे तो लिखेंगे डायगोनल्स परपेंडिकुलरली bisect each other. Here you can find that diagonals perpendicularly bisect each other. So the term is clear here. When both the diagonals cut each other at 90 degree means यहाँ पर सभी पॉइंट पर चारों ओर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. और साथ ही साथ डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं. तो जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. दैट मीन्स व्हाट यू कैन इम्प्लाई AO इज इक्वल टू OC. जब AO और OC आपस में इक्वल है दैट मीन्स O जो है AC का मिड पॉइंट हो जाएगा और AO और OC AC का आधा आधा भाग हो जाएगा. सो हम लोग लिख सकते हैं AC by 2. Similarly, in the case of OB is equal to OD, we can write half of BD. But diagonals are not equal here. Remember, diagonals are not equal. AC is not equal to BD.
In the sense of parallelogram and in the case of rhombus, diagonals cannot be equal to each other because any one angle of the quadrilateral is not equal to 90 degree. यहाँ जब भी हम parallelogram पढ़ते हैं या rhombus पढ़ते हैं तब इसका जो ओरिजिनल केस हम ड्रॉ करते हैं उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है. अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तब उस स्थिति में डायगोनल्स अपने आप इक्वल बन जाते हैं. पैरेललोग्राम में हम लोग पढ़े थे कि अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो सभी एंगल्स 90 डिग्री हो जाते हैं. वैसे ही रोम्बस की बातें अगर हम करें तो रोम्बस में भी अगर एक एंगल को हम 90 डिग्री बनाएंगे, सपोज दैट इस एंगल को हम 90 डिग्री के रूप में ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होगा, साइड सीधा हो जाएगा. 90 बनाने के लिए इस साइड को थोड़ा सा हमें टर्न करना पड़ेगा इस पॉइंट के अबाउट. तो जैसे ही ये एंगल 90 में कन्वर्ट होगा, ये इधर सीधा होगा, वैसे ही ये भी इधर सीधा हो जाएगा. तो जैसे ही ये पोर्शन यहाँ सीधा होगा, ये भी ऑटोमेटिकली 90 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर एक एंगल हम 90 बनाएंगे तो सभी एंगल अपने आप 90 में कन्वर्ट हो जाएगा. और चूंकि यहाँ पर चारों साइड आपस में इक्वल है तो जैसे ही एक एंगल को 90 में हम कन्वर्ट करेंगे, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. तब एक रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा जब इसके एक एंगल को हम 90 डिग्री बनाएंगे. तो फिलहाल ये 4 प्रॉपर्टीज है यहाँ. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ लुक एट द 5th प्रॉपर्टी. द डायगोनल्स ऑफ a rhombus bisect the interior angles. You can find that in this rhombus 4 interior angles are given. Angle A, angle B, angle C and angle D. These are 4 interior angles. So when you draw any one of the diagonal, when we draw one of the diagonal, then this diagonal bisect the interior angle. ये अपने corresponding interior angle को bisect करता है. Means BD bisect the angle D as well as the angle B. Means suppose that इस angle का value अगर 120 डिग्री है तो प्रत्येक वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा. So, suppose that we put the name of the angle as 1, 2, 3 and this as 4. So, we can write that angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4 because BD bisect the vertical angles. Similarly, the same case you can create with the help of second diagonal. When you look at the second diagonal, when we draw the second diagonal, then this diagonal is bisect the angle A as well as the angle C. So put the name of the angle as 5, 6, 7 and this one is 8. So here we have 5 is equal to 6 and 7 is equal to 8. And remember, according to the property of, ये property parallelogram में नहीं पाया जाता. जो original case है parallelogram का, अगर adjacent sides parallelogram में बराबर नहीं है तो ये property parallelogram में follow नहीं होता. ये property सिर्फ अभी यहाँ चूंकि हम लोग रोम्बस पढ़ रहे हैं इसलिए रोम्बस की बातें करते हैं. तो यह प्रॉपर्टी सिर्फ रोम्बस में फॉलो हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड्स आपस में बराबर हैं. यही कारण है कि डायगोनल्स वर्टिकल एंगल को मींस इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है. अब कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं जो कि पैरेललोग्राम में लास्ट में पढ़े थे कि अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं. दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू 8 and 5 is equal to 7 by the alternate angles. You can say that angle 5 is equal to angle 7 and angle 6 is equal to angle 8.
अभी तक हमने यहाँ से क्या देखा, 5 6 के बराबर है और 7 8 के बराबर है। अब यहाँ से अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी के द्वारा हमने देखा कि 5 7 के बराबर है और 6 8 के बराबर है। दैट मीन्स ये चारों एंगल्स आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन दो केस को कंबाइन किया यहाँ पर 5 6 7 8 और यहाँ 5 7 6 8, तो चारों एंगल्स आपस में सेम हो गए। और दूसरा पॉइंट अगर हम जोड़े तो पैरेलल और रोम्बस के अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सो वाई ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल है। सिमिलरली इन चारों की बातें करें तो ये चारों भी अपने आप में इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हमें एक साथ कंबाइन करके यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ये स्टूडेंट के लॉजिक पावर पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो प्रॉपर्टी को समझ पाते हैं।